کراچی کے علاقے گبول ٹاؤن میں آگ سے متاثرہ عمارت منہدم، ملبے تلے دب کر 4 فائر فائٹرز جاں بحق۔ آگ بجھانے والے عملے کے 11 ارکان سمیت 13 افراد کو زخمی حالت میں نکال لیا گیا۔ فیکٹری کی عمارت میں گزشتہ روز آگ لگی تھی۔ ریسکیو اہلکار کولنگ کے عمل میں مصروف تھے کہ حادثہ ہو گیا۔ جاں بحق ہونے والوں کی محسن، افضال، سہیل اور خالد شہزاد کے نام سے شناخت۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے خلاف درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 8 رکنی لارجر بینچ آج مقدمہ سنے گا۔ جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس مظاہر نقوی بینچ میں شامل۔ جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس شاہد وحید اور جسٹس عائشہ ملک بھی بینچ کا حصہ۔ پاکستان بار کونسل کا سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کی حمایت کا اعلان۔ معاملے کی سماعت کے دوران آج ملک بھر میں عدالتی بائیکاٹ کیا جائے گا۔ مرضی کے ججز پر مشتمل بینچ بنایا گیا، سینئر ججز کو بھی شامل ہونا چاہیے۔ وائس چیئرمین حسن رضا پاشا کا موقف۔ وفاقی حکومت کا سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے بھرپور دفاع کا فیصلہ۔ وزیراعظم کے زیر صدارت اجلاس میں معاملے کا تفصیلی جائزہ۔ قانونی ٹیم کی جانب سے آئینی امور پر بریفنگ، وزیر قانون اور اٹارنی جنرل کی بھی شرکت۔ وفاقی کابینہ کا آج بلایا گیا اجلاس مؤخر۔ نون لیگی قیادت دن 12:30 بجے وزیراعظم ہاؤس میں سر جوڑ کر بیٹھے گی۔ پنجاب میں انتخابات کے لیے فنڈز کی عدم فراہمی، سپریم کورٹ نے اٹارنی جنرل، سیکرٹری خزانہ اور گورنر اسٹیٹ بینک کو طلب کر لیا۔ 14 اپریل کو ذاتی حیثیت میں چیف جسٹس چیمبر میں حاضر ہونے کا حکم۔ سیکرٹری الیکشن کمیشن کو بھی نوٹس جاری۔ بروقت انتخابات نہ کروانا آئین کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ رقم کی فراہمی توہین عدالت کی اس سے زیادہ اہم ہے۔ بتایا جائے عدالتی احکامات پر عمل کیوں نہیں ہوا۔ حکم عدولی کرنے اور اس پر اکسانے والوں کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک حکومت کے پاس موجود تمام پیسے کی تفصیلات ساتھ لائیں۔ نوٹس کا متن۔ جمہوری ملک میں الیکشن اس وجہ سے ملتوی نہیں ہونے چاہیے کہ پیسے نہیں ہیں۔ اس وقت پارلیمنٹ ادھوری ہے۔ انتخابات کی تاریخ کے حوالے سے فیصلہ عدالت کو کرنا چاہیے۔ وزیراعظم سے کوئی پرائیویٹ ملاقات نہیں کی۔ شہباز شریف نے خط میں کیا لکھا، اس کا جواب نہیں دوں گا۔ صدر مملکت عارف علوی کا ٹی وی انٹرویو۔ عمران خان کی زیر صدارت زمان پارک میں PTI آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس۔ سردار تنویر الیاس اور قائم مقام وزیر اعظم خواجہ فاروق کی شرکت۔ سیاسی صورتحال کا جائزہ۔ آزاد کشمیر کے نئے وزیر اعظم کے انتخاب کے لیے مختلف ناموں پر مشاورت۔ تنویر الیاس کی نااہلی سے متعلق قانونی معاملات پر بھی رائے لی گئی۔ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر کی نااہلی کے خلاف درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ سپریم کورٹ کا فل کورٹ آج سماعت کرے گا۔ عدالت نے وکلاء کی طرف سے دائر اپیل مسترد کر دی تھی۔ سردار تنویر الیاس کو مظفر آباد ہائی کورٹ نے گزشتہ روز نااہل قرار دے کر عہدے سے ہٹا دیا تھا۔ پی آزاد کشمیر کے رہنماؤں کی آصف زرداری اور بلاول بھٹو سے ملاقات۔ سردار تنویر الیاس کی نااہلی اور نئے وزیر اعظم کے انتخابات کے حق سے تبادلہ خیال، سیاسی صورتحال سے بھی آگاہ کیا۔ عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف غیر شرعی نکاح کیس کی سماعت نکاح خواہ نے اسلام آباد سیشن کورٹ میں بیان قلم بند کرا دیا۔ 1 جنوری 2018 کو نکاح پڑھایا۔ عمران خان اور بشرا بی بی اسلام آباد میں اکٹھے رہنے لگے۔ فروری 2018 میں PTI چیئرمین نے دوبارہ رابطہ کر کے بتایا کہ عدت پوری نہیں تھی، اس لیے نکاح غیر شرعی تھا۔ دوبارہ نکاح پڑھانے کی درخواست بھی کی گئی۔ مفتی سعید کا موقف۔ یکم جنوری 2018 کا قصہ ہے۔ جناب عمران خان صاحب نے اپنے نکاح کے لیے
यहाँ से लाहौर का सफ़र किया। बशीरा बीबी साहिबा के साथ जो ख़वातीन उस घर में मौजूद थीं, हमने उनसे पूछा कि निकाह के लिए जो शरई तकाज़े होते हैं उसके मुताबिक सब कुछ हो चुका। उन्होंने कहा हो चुका, तो मैंने उनका निकाह बशीरा बीबी से पढ़ा दिया। दीगर ज़राए से भी और मीडिया से भी मालूम हुआ कि जो मुझसे कहा गया था वो दुरुस्त नहीं था, तो शरई एतबार से ये निकाह फासिद हुआ। वज़ीर-ए-आज़म का मुज़फ़्फ़रगढ़ और डेरा गाजी खान का दौरा, शहरियों को मुफ्त आटे की फ़राहमी का जायज़ा, मौके पर मौजूद अफराद से मसाइल भी दरियाफ़्त किए। मुतालिका हुकाम को मुश्किलात के फौरी इज़ाले की हिदायत। तारीख़ में पहली बार मुस्तहिक़ीन को मुफ्त आटा फ़राहम किया जा रहा है। मुल्क को कई चैलेंजेस का सामना है, मसाइल से निजात के लिए कोशिशें जारी। अवामी खिदमत का मिशन जारी रहेगा, शहबाज शरीफ का अज़्म। मुश्किल हालात हैं, मुल्क के अंदर चैलेंजेस हैं, लेकिन अल्लाह ताला के फज़ल करम से ये मखलूत हुकूमत हम सब मिलकर हम कोशिश कर रहे हैं, हम इस मुश्किलात से निकलेंगे। तारीख़ में पहली मरतबा जो पैकेज फ्री आटे का दिया गया है, मुझे भी शुरू में कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे। जो ही रमज़ान शरीफ ख़त्म होगा हम बैठेंगे और फिर दुकानों में कितना सस्ता आटा हम दे सकते हैं उसके लिए मीटिंग करूँगा। दो ही सूरतें हैं, या तो इलेक्शन होंगे या वज़ीर-ए-आज़म और काबीना घर जाएगी। अदालतों के हुक्म के ऊपर, मातहत अदालतों के हुक्म पे ऊपर तो अमल ही नहीं हो रहे, और उसके बाद तो वाहिद तरीका ये है कि लोग सड़कों पे निकलेंगे और अपने राइट्स रिक्लेम करें, क्योंकि उसके बाद तो वरना तो आइन तो ख़त्म हो गया। मैं इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहता हूँ कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के फंडिंग के मामलात किधर गए हैं? इंतखाबात होंगे या वज़ीर-ए-आज़म और काबीना घर जाएगी, तीसरा कोई रास्ता नहीं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल ना हुआ तो लोग सड़कों पर निकल आएंगे। इलेक्शन कमीशन बताए नून लीग और पीपल्स पार्टी की फंडिंग के मामलात कहाँ हैं, तो शाखाना का रिकॉर्ड भी सामने नहीं लाया जा रहा। फवाद चौधरी की मीडिया टॉक। PTI रहनुमा की MQM पर तनकीद, मरदमशुमारी गैर शफाफ होने का भी इल्ज़ाम। मरदमशुमारी पर उंगलियां उठाने वाले 2 माह से कहाँ थे? PTI दौर में खैबर पख्तूनख्वा करप्शन की आमाज का रहा। फवाद चौधरी सूबे के तरक्याती फंड्स में खुर्द-बुर्द का हिसाब दें। इमरान खान ने बतौर वज़ीर-ए-आज़म एक दिन भी कराची में क़याम गवारा नहीं किया। तहरीक इंसाफ रॉन्ग नंबर है, कराची वाले अब धोखे में नहीं आएंगे। राबिता कमेटी का रद्द-ए-अमल। हुकूमत के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट, इर्तिकाबे जुर्म का दस्तावेजी सबूत। शहबाज शरीफ तौहीन अदालत कर चुके, सरदार तनवीर इलियास के बाद अब उनके नाअहल होने की बारी है। इसहाक डार पाकिस्तान को डिफॉल्ट कराने के मिशन पर आए थे। मौजूदा हुकूमत के होते हुए मुल्क की मईशत संभलने का कोई इम्कान नहीं। चौधरी परवेज़ इलाही की तनकीद। PTI चेयरमैन इमरान खान से शेख रशीद की अहम मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर मुशावरत, सुप्रीम कोर्ट के फैसले और पार्लियामेंट में बिल की मंजूरी के हवाले से भी तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ज़ाना की मुआशी टीम के साथ IMF की सालाना मीटिंग में वर्चुअल शिरकत, जारी प्रोग्राम की पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। मिशन के दौरे पाकिस्तान के दौरान पेश किए इक़दामात का जायजा। इसहाक डार ने मुल्क को दरपेश मुआशी चैलेंजेस से भी आगाह किया। बोर्ड की मंजूरी के बाद स्टाफ लेवल मुआहदे पर जल्द दस्तखत होंगे। डायरेक्टर IMF का इजहार ख्याल। IMF से मुआहदे की कोशिशें, पाकिस्तान को रवां हफ्ते मुत्तहिदा अरब अमारात से $1 अरब की तहरीरी जमानत मिलने का इम्कान। मामलात फाइनल, सेक्रेटरी खजाना वाशिंगटन में मॉनेटरी फंड के हुकाम को आगाह करेंगे। सरकारी मुलाजमीन की मौजें, हुकूमत का ईद से पहले तनख्वाह और पेंशन की अदायगी का फैसला। सेक्रेटरी खजाना को फौरी इंतजामात की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर खजाना इसहाक डार को भी अहकामात जारी कर दिए। मरियम औरंगज़ेब का बयान।
महंगाई के मारे आवाम पर एक और बोझ, बिजली मजीद 46 पैसे फी यूनिट महंगी, इतलाक 3 माह के लिए होगा। सार्फिन से 15 अरब 45 करोड़ रुपए वसूल किए जाएंगे। चीनी के निर्खों में इजाफा और स्मगलिंग रोकने के लिए फौरी इक़दामात का हुक्म, पंजाब हुकूमत का सूबे के खारजी रास्तों की मॉनिटरिंग का फैसला। निगरान वज़ीर आला के ज़ेर सदारत इजलास में सूरत हाल का जायजा। मामले में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, मोहसिन नकवी की वार्निंग। इलेक्शन एक्ट की शिक 57 और 58 में तरमीम का मामला, चेयरमैन सेनेट ने पार्लिमानी कमेटी तश्कील दे दी। बैरिस्टर अली जफर और दिलावर खान भी शामिल। पहला इजलास जुमे के रोज तलब, तरामीम से इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार सदर ममलकत से वापस ले लिया जाएगा। कच्चे के इलाके में पक्का ऑपरेशन, पुलिस की भारी हथियारों और जदीद बख्तरबंद गाड़ियों के साथ मुसलसल पेशकदमी, लुटेरे गिरोहों के गिरद घेरा तंग, वक्फे वक्फे से फायरिंग का तबादला। 4 रोज में 3 डाकू हलाक, 6 गिरफ्तार, मुतादिद ठिकाने तबाह, सैकड़ों एकड़ रकबा क्लियर करवा लिया गया। फिर सर उठाने लगा, कराची में मोहलिक बारिश के बायस 2 अमवात, लाहौर में 14 केस सामने आ गए, गिलगित और गुजरावाला में 1-1 और इस्लामाबाद में 2 मरीज रजिस्टर्ड। हसन अब्दाल में बैसाखी मेला शुरू, भारत से आए सिख यात्रियों की गुरुद्वारा पंजाब साहिब आमद, इंतजामिया की जानिब से शानदार इस्तकबाल। पड़ोसी मुल्क से आए मेहमान इंतजामात देखकर खुश, सिक्योरिटी सख्त, दाखिली और खारजी रास्तों पर चेकिंग का सिलसिला जारी। सिफारती ताल्लुकात की बहाली के बाद ईरानी वफ्द का दौरा सऊदी अरब, रियाद पहुंचने पर सऊदी हुकाम की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल। वफ्द सऊदी दारुल हुकूमत में सिफारत खाना और जद्दा में काउंसलेट जनरल दोबारा खोलने के हवाले से इक़दामात करेगा। और कीवी क्रिकेट टीम के लाहौर में डेरे, 2 रोज़ आराम के बाद मेहमान स्क्वाड का आज ट्रेनिंग सेशन, 5 मैचेस पर मुश्तमिल T20 सीरीज का पहला मुकाबला 14 अप्रैल को कज़ाफ़ी स्टेडियम में शेड्यूल। दोनों टीमों के दरमियान 5 वनडे मैच भी खेले जाएंगे।